Hi everyone, welcome to our channel Civil with Sudhir. So myself Sudhir Jinobay. So today in this video we are discussing the continuation part of the concrete technology. Only within few classes we can complete the concrete technology. If you want any different topic from concrete technology, okay, just I am covering all the important topic of concrete technology. If you want any other topics that you want or that is important, you can comment me in this comment box, so that I can make on video for the next video. I will make on the video for that topic on next video. So today's topic is the creep of the concrete, as well as what are the factors affecting creep, and what is high strength concrete and flexural strength of the concrete. So before going to start, please join our Telegram channel, that is Civil with Sudhir, where you will discuss any other, if you have any type of doubt, we can discuss there. So in last class we have discussed the strength of the concrete, what is strength of the concrete, and what are the factors affecting, that is water cement ratio, gel space ratio, and grades of the concrete. So and this is the explanation of that gel space, what is gel space ratio, and all those things. And this is grades of concrete as per the IS 456. I have told you there is some changes in the grades of the concrete, right? So up to M60 now is the standard concrete, and M65 to M100, right? This is the high strength concrete. So this is the updated one, right? And next, maturity of the concept. What is maturity of the concept of the concrete, and bond strength of the concrete. So today in this video we will start from here. I think this one also we have covered, but I will start from here also. So flexural strength of the concrete. So what is flexural strength? देखिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ये है, IS 456 2000 हमको क्या बोलता है, तो रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हम ये 7% ऑफ हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल के लेते हैं. तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 इंटू रूट FCK, 0.7 इंटू रूट FCK. सो व्हाट इज द रूट दिस FCK? It is an characteristic compressive strength of the concrete. Characteristic compressive strength of the concrete. Okay, so this is the formula, and where the FCK is the characteristic compressive strength of the concrete in Newton per millimeter square, right? So they may ask one more question on this one, right? So you have to remember this formula. Formula is very important. Next is Young's modulus of the elasticity of the concrete. So what is Young's modulus? That is the EC, that is the Young's modulus of elasticity of the concrete as per IS 456 is 5000 into root FCK, right? Don't confuse in between flexural strength of the concrete and the Young's modulus of elasticity of the concrete, right? Young's modulus is 5000 into root FCK, and flexural strength is 0.7 into root FCK, right? And FCK is same for both. That is the characteristic compressive strength of the concrete in Newton per millimeter square. ठीक है, यंग्स मॉडुलस समझ में आया ना? यंग्स मॉडुलस क्या है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, बस खत्म. नेक्स्ट, सो व्हाट इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट? देखिए आपको फर्स्ट समझना है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. सो 1 minute. Okay, for normal concrete, right? For normal concrete we will use different type of grade, that is 43, 33, 43 and 53 grades of the concrete, right? 33, 43 and 53, and we will calculate the strength on this one. So high strength concrete is used for in certain special conditions, like where if you want to construct a dam, if you want to construct any shore or nearby water areas, if you want to construct any dam or any hydraulic structure, in that special conditions you have to use some high strength concrete. Or if you want to build an 100 floor building, if you are building an 100 floors building, right? So the strength of this building is, we require a special type of concrete. That special type of concrete we call it as high strength concrete. So now what is the difference between the high strength concrete and the normal concrete? That is, normally we can say normal concrete. First important point is the difference between the high strength concrete and normal concrete is the compressive strength, right?
So the compressive strength of normal concrete, if you taken 53 grade, after 28 days, that is 53 Newton per millimeter square is the strength. But for the high strength concrete, the strength it may be higher than what you are expecting at 28 days. It will give within a few days. Right? For example, it will give more than 100 Newton per millimeter square strength. And here we can increase the tensile strength also, including some admixtures like fibers. We can use the fibers. We can use the fibers to increase the strength of the high strength concrete. So this is the major difference between the normal concrete and the high strength concrete. The name itself you can see. Now how we can produce, how you can produce the high strength concrete, हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, which type of material we have to use to produce this high strength concrete. So there are some special methods of making high strength concrete. So what are those? First one is seeding. Seeding is nothing but this involves adding a small percentage of finely ground, fully hydrated Portland cement to the fresh concrete. See, finely ground means it may have some fly ash also. Right? Finely ground means we can add fly ash also. Right? We can add metacolin, we can add silica fume, but those are what? Those are pozzolanic material. Right? Fly ash, metacolin, silica fume ash or silica fume. These are all what? These are all pozzolanic material. But here they are telling fully hydrated Portland cement to the fresh concrete mix. Means, for example, you are constructing or you are manufacturing a building or you are manufacturing in any type of concrete, right? So that concrete, if you want to measure 1 meter cube and you have just mixed here, right? This is the fresh concrete. And after mixing the concrete, after mixing the sufficient quantity of cement at the beginning, right? After completion of the concrete also, you have to add some extra cement, right? If you add extra cement, what will happen? That may be consumed by that whole mass concrete, and that type of process we call it as seeding. So it will ultimately increase the strength, right? Ultimately it will increase the strength. Now question arises, how much quantity we have to add? That again depends on what is the environmental condition, right? And what is the exposure condition? What is the exposure condition? What is the exposure condition? On that we can decide how much quantity of cement we have to add in the fresh concrete. So this is one of the method of seeding. And the next, second one is reverberation. So what is reverberation? Reverberation is nothing but adding some different material. Just remember now, concrete undergoes plastic shrinkage. So what is plastic shrinkage? What is plastic shrinkage? So plastic shrinkage is nothing but when you add water in the mix, right? And when you place the concrete at this position, final position, the water will accumulate on the surface, right? That water we can say that is an latent. That latent or moisture will be evaporated due to the sun or any external heat. That we call it as an plastic shrinkage. And after that, after the moisture will evaporate, the cracks will develop on the surface when the concrete is in plastic state only, or it is in moist condition. That type of shrinkage we call it as plastic shrinkage. Okay. Now mixing water creates continuous capillary channels. Mixing water creates, right? Mixing water creates continuous capillary channels. So it may have bleeding and water accumulates at some selected places. So water will be accumulated. देखिए वाटर क्या करता है, कंटिन्यूसली कैपिलरी चैनल्स को क्रिएट करता है और ब्लीडिंग और वाटर भी एक्यूमुलेट वहाँ पे होता है. जैसे ही वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, ऑल दिस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बिकॉज फॉर एग्जांपल, एक मिनट, यहाँ पे आप स्केच देख लीजिए. ऐसा एक कंक्रीट सरफेस है, अगर यहाँ पे ऐसा एक चैनल बन गया ऐसा, ठीक है, यहाँ से वाटर ऊपर से आराम से नीचे तक आ रहा है, तो इस चैनल या इस पाथ को ज्यादा थिकनेस होने में बहुत दिन नहीं लगेगा. ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं कंटिन्यूस चैनल. सो कंट्रोल्ड reverberation removes all these defects and increase the strength of the concrete. Reverberation is nothing but वो
पूरा सारे मटेरियल्स को एक ही तरह मिक्स कर देगा, ठीक है, तो उसको ही हम रेविब्रेशन बोलते हैं। सो उससे भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम क्या है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक मेथड है, राइट। नेक्स्ट, हाई स्पीड स्लरी मिक्सिंग। सो व्हाट इज स्लरी मिक्सिंग? स्लरी आपको पता है स्लरी क्या है, बट कौन सा स्लरी हम यूज करते हैं अब उसको देखेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एडवांस प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट वाटर मिक्सचर। देखिए, एडवांस सीमेंट वाटर मिक्सचर को करने का एक मेथड है, विच इज देन ब्लेंडेड विथ एग्रीगेट टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीमेंट और वाटर को एक स्लरी में मिक्स करते हैं, उसके बाद एग्रीगेट मिक्स करते हैं। हमारा नॉर्मल प्रोसेस कैसा है, हाउ यू विल मिक्स द कंक्रीट। अब कंक्रीट को कैसे मिक्स करते हैं, या तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, ड्राई मिक्स करते हैं सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का, उसके बाद हम वाटर ऐड करते हैं। बट जब हम हाई स्पीड स्लरी मिक्सिंग करते हैं, वहां पे सीमेंट और वाटर को फर्स्ट मिक्स करते हैं, सीमेंट और वाटर, उसके बाद जो भी मटेरियल है सैंड या कोर्स एग्रीगेट उसको हम उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो ये है हाई स्पीड स्लरी मिक्सिंग। सो इससे क्या होगा, मिक्स या पेस्ट जो बन रहा था उसका वाटर के साथ अच्छा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा। इट इज एट्रीब्यूटेड टू मोर एफिशिएंट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। तो हाइड्रेशन प्रोसेस ज्यादा होगा बिकॉज वहां पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिक्स हो चुका है। तो सीमेंट पार्टिकल्स एंड वाटर अचीव्ड इन द विगर्स ब्लेंडिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट। तो अच्छा मिक्स हो ऐसा रहता है, इसीलिए क्या है बहुत ही ज्यादा फास्ट क्या है हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। जितना हाइड्रेशन प्रोसेस इंक्रीज होता है उतना हमारा क्या है स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। हाउ मच द हाइड्रेशन प्रोसेस इंक्रीजेस आवर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट विल बी इंक्रीजेस, ओके। सो ये है हाई स्पीड स्लरी मिक्सिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ एडमिक्सचर। सो यूज ऑफ एडमिक्सचर्स क्या है, तो एडमिक्सचर्स आपको अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये कंक्रीट के बाद हम पढ़ लेंगे एडमिक्सचर्स क्या है, एक क्लास में हो जाएगा एडमिक्सचर। सो एडमिक्सचर्स आपको पता है, प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है, वाटर एजेंट है, एयर एंटरिंग एजेंट है। तो ये सारे क्या है हमारे क्या है एडमिक्सचर्स है। बट मिनरल एडमिक्सचर्स भी रहते हैं, मिनरल एडमिक्सचर्स लाइक फ्लाई ऐश, मेटाकोलाइन, ओके, सिलिका फ्यूम, एल्यूमिनियम वेस्ट, ये सब क्या है हमारा मिनरल एडमिक्सचर्स है। ये केमिकल एडमिक्सचर्स हो गए, ये मिनरल एडमिक्सचर्स हो गए, ठीक है। तो यूज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स आर नोन एज टू प्रोड्यूस द इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इतना ही आपको याद रखना है। आप डिफरेंट क्या है एडमिक्सचर्स यूज करके कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। हम पीपीसी यूज करते हैं, पोर्टलैंड पोजोलन, वहां पे पोजोनिक मटेरियल रहता है, फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं, राइट। सिलिका फ्यूम यूज कर सकते हैं, सिलिका फ्यूम से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिलिका फ्यूम से ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सल्फर इम्प्रेगनेशन। Sulfur impregnation. Satisfactory high strength concrete have been produced by impregnating low strength porous concrete by sulfur, ठीक है। तो सल्फर इम्प्रीगनेशन कैसे करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय लो स्ट्रेंथ पोरस कॉन्क्रीट बाय सल्फर। लो स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, उसको यूजिंग क्या है सल्फर यूज करते हैं, तब हम हमारे को ये सल्फर इम्प्रीगनेशन मिलता है। तो ये 5 क्या हो गए हमारे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के कुछ मेथड है हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी क्या कुछ भी मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, हम सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। वी कैन रिप्लेस द सीमेंट आल्सो एंड वी कैन रिप्लेस द आवर एग्रीगेट्स आल्सो, that may be sand or coarse aggregate or any other type of material, and we can produce the high strength concrete. So it depends on the material availability. Material कितना availability है उसके ऊपर depend रहेगा, right? So next topic is creep of the concrete. अच्छा important topic है, अच्छे से सुनिए because इसके ऊपर से ज्यादा questions आएंगे। Concrete. So creep क्या है, देखिए क्रीप के लिए मैं आपको एग्जांपल एक स्टोरी बता दूंगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाया है,
you are constructed a building, right, at 2019, right, after 2021, right, sorry, after 2020, at 2020. So at 2020 when you added the load, देखिए ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर लोड आ जाएगा। जैसे ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका डेड लोड, सुपर इम्पोज लोड, लाइव लोड सब आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर लाइव लोड आ जाएगा, राइट, ये कंटिन्यूसली 1 ईयर या 2 ईयर, ओके, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक क्या है, ये थोड़ा थोड़ा क्या है, ये सेटल हो जाएगा। बट वो सेटल हो जितना कम वो कम रहता है आपको नहीं दिखता है, ठीक है। ये जो सेटल होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कितना आपने स्ट्रेस डाला और स्ट्रेन कितना आ रहा है, ठीक है। सो बिगिनिंग में ये ज्यादा रहता है, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे इसका क्या है, क्रीप का इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। तो इसी को हम अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे। क्रीप कैन बी डिफाइंड एज द टाइम डिपेंडेंट। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज द which is the following is a time dependent? So creep is always a time dependent and it is a part of a strain resulting from the stress. It is a part of the strain का मतलब आपको पता है, ठीक है। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपको पता है, या जो भी डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा उसको हम क्या है, स्ट्रेन कहते हैं। या जो भी हमारा मटेरियल स्ट्रेन दिखाएगा, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल, जो भी मटेरियल है, ठीक है, कितना हम उसको खींच सकते हैं वो भी हम उसको भी हम स्ट्रेन बोलते हैं। बट यहाँ पे कंक्रीट क्या है, कितना आपने स्ट्रेस डाला उस कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर और उतना कितना उस कंक्रीट ने डिफॉर्मेशन दिखाया, राइट। तो इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेन। सो क्रीप कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन स्ट्रेन अंडर सस्टेन स्ट्रेसेस, ठीक है। क्रीप कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन स्ट्रेन अंडर सस्टेन स्ट्रेस। सस्टेन स्ट्रेस जो है कंटिन्यूस स्ट्रेस या लोड हम जो कहते हैं, स्ट्रेस को कंफ्यूज मत कर लीजिए। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लोड बाई एरिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड कितना डाल रहे हैं यहाँ पे उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट, क्रीप ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेस अप टू 30 to 40% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखिए तो क्रीप ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, स्ट्रेस अप टू 30 to 40% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ रहता है क्रीप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो क्रीप टेक्स प्लेस ओनली अंडर स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस जहां पे है वहीं पे क्रीप रहेगा, यहाँ पे जहां पे स्ट्रेस नहीं है वहां पे क्रीप नहीं रहेगा। ये एक पॉइंट क्लियर आप याद रख लीजिए। अंडर सस्टेन स्ट्रेस विथ टाइम द जेल द ऑब्जर्व्ड वाटर लेयर, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वाटर लेयर, द वाटर हेल्ड इन द जेल पोरस एंड द कैपिलरी पोरस यील्ड्स। तो एक सस्टेन स्ट्रेस में एक जेल और एक ऑब्जर्व्ड वाटर लेयर क्या हो जाएगा, वो जेल पोरस और कैपिलरी पोरस यील्ड हो जाएगा, या मीन्स वो मिक्स हो जाएगा या वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। फ्लोज एंड री एडजस्ट देमसेल्फ, वो ड्राई होके अपने आप एडजस्ट कर लेंगे या दोनों अपने आप को मिक्स कर लेंगे। तब क्या होगा, विच बिहेवियर इज टर्म एज क्रीपिंग कंक्रीट। उसका बिहेवियर कैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, राइट, ये एक फ्रेम है बोल के समझ लीजिए, राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लोड अप्लाई किया या आपने फॉर्मवर्क को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रीप आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके अंदर द इनसाइड ऑफ दिस मटेरियल इनसाइड जो भी होगा वो जेल पोरस और कैपिलरी पोरस जो भी है वो यील्ड होके दोनों मिक्स हो जाएगा, राइट। तो उसमें कुछ क्या छेद आ जाएगा या कुछ ब्लॉक्स आ जाएंगे, उसको ही हम बोलते हैं क्रीप, ठीक है। इतना सिंपल है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ क्रीप हम कैसे करते हैं, हाउ यू कैन मेजर द क्रीप। देखिए यहाँ पे एक स्केच है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक असेंबल है, या आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक लोड है, ये एक लोड, ठीक है, और ये स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग, ये लोड है स्प्रिंग के ऊपर, यहाँ पे भी लोड है, और एक कंक्रीट सिलेंडर है, ये जो आपको दिख रहा है ना,
ये कंक्रीट सिलेंडर है। तो उन्होंने क्या किया है, दे हैव जस्ट प्लेस दिस कंक्रीट सिलेंडर and they have applied the load, external load. This is the external load and this one also, and this is tie rod. So we can measure the measurement or strain. Now see how we can measure. Creep is usually determined by measuring the change with the time in the strain of specimen subjected to constant stress. Okay, so you have to apply constant stress on this cylinder or concrete, right? Stored under appropriate condition. Appropriate condition means it will not be moved from one position to another position while applying the load. ठीक है, तो ये क्रीप का एक मेथड हो गया। अब मेजरमेंट। द स्प्रिंग एंश्योर्स, ये स्प्रिंग जो है, ठीक है, ये स्प्रिंग का भी ये स्प्रिंग का वेट है, ये भी यहाँ पे भी वेट है, यहाँ पे भी वेट है, ये दोनों वेट यहाँ इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर का वेट कितना आता है उतना ही वेट इसके ऊपर और इसके ऊपर आना चाहिए। इसके लिए ये दोनों का वेट इसके ऊपर गिरना जरूरी है, इसीलिए ये एक्सटर्नल स्प्रिंग का लोड हम डालते हैं। समझ में आया ना, स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं। The spring ensure that the load is sensibly constant in spite of the fact that the specimen contract with the time. तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, कितना mm में या स्ट्रेन में हो जाएगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस द क्रीप मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। देखिए श्रिंकेज को भी हम यहाँ पे लेते हैं। समझ में आया ना, ए मेजरमेंट ऑफ द क्रीप। सो it is necessary to keep companion unloaded specimen to eliminate the effect of shrinkage and other autogeneously volume change। ये वॉल्यूम चेंज भी होने का चांसेस रहता है, उसको हम कंसिडर नहीं करना है। क्रीप अलग है और श्रिंकेज अलग है। अब इसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। 26% ऑफ द 20-year क्रीप अकर्स इन 2 weeks। देखिए 20 ईयर्स में जो क्रीप होना है वो क्या हो जाएगा, 26% ऑफ 26% जो है 20 ईयर का वो 2 weeks में हो जाएगा। आप अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए 2 weeks में 26% ऑफ 20 ईयर्स का 26% वहां पे अप्लाई हो जाएगा ऑलरेडी। और 55% ऑफ 20 ईयर क्रीप अकर्स इन 3 months। 55% कब होगा, 3 months में। एंड 76% ऑफ 20 ईयर क्रीप अकर्स इन 1 year। देखिए एक ईयर में पूरा 76% अचीव हो जाएगा। तो एक ईयर तक हम बिल्डिंग को ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक है, तो कैसा हम उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, क्रीप को मेजर करते रहना पड़ेगा। बिकॉज सेटलमेंट अलग है, क्रीप अलग है। फिर सेटलमेंट को आप क्रीप मत बोलिए। ठीक है, क्रीप हम स्ट्रक्चर में मेजर करते हैं, सेटलमेंट टोटल फाउंडेशन हो गया। ठीक है, सेटलमेंट इज डिफरेंट एंड क्रीप इज डिफरेंट। डोंट कंफ्यूज विद द सेटलमेंट। क्रीप इज डिफरेंट एंड द सेटलमेंट इज डिफरेंट। नाउ if creep after 1 year is taken as unity, then the average value of the creep at later ages are। देखिए एवरेज इसको हम बढ़ा के लेते हैं अब। तो अगर क्रीप 1 year के बाद यूनिट हो गया, या एवरेज वैल्यू हम कैसे लिखते हैं 1.14 राइट फॉर 2 years, 1.2 फॉर 5 years, 1.26 फॉर 10 years, 1.33 फॉर 20 years एंड 1.36 आफ्टर 30 years। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेजरमेंट ऑफ व्हाट, क्रीप। अब कुछ फैक्टर्स को देख लेंगे फटाफट से। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लीजिए। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट का इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट अंडरगोज वेरी लिटल क्रीप। सो एग्रीगेट क्या है, वेरी लिटल, थोड़ा सा उसके ऊपर क्रीप आएगा। The stronger the aggregate, the more is the restraining effect and hence the less is the magnitude of the creep। कितना स्ट्रांग रहेगा मटेरियल उतना क्रीप कम होगा। बिकॉज देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने एक स्लैब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, इसके अंदर पार्टिकल्स है ऑलरेडी। तो ये जब आप अप्लाई लोड करेंगे, आप लोड अप्लाई करेंगे,
ये पार्टिकल के ऊपर अगर इस पार्टिकल ने इसको रेसिस्ट कर लिया, अगर ये क्रैक हुआ तो ये लोड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर ये क्रैक हो जाएगा, तो पूरे सारे मटेरियल ऐसे क्रैक होके यहाँ पे एक चैनल सा बन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम श्रिंकेज भी बोलते हैं या उसको हम क्रैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज हम क्रीप श्रिंकेज को ही हम नेक्स्ट स्टेज में हम श्रिंकेज या क्रीप बोलते हैं ना, तो वो हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल रहना चाहिए। Modulus of elasticity of the aggregate is one of the important factor influencing the creep. Modulus of elasticity of the aggregate. देखिए, लाइट वेट एग्रीगेट का कभी भी सब्सटेंशियली हायर क्रीप लाइट वेट का देन द नॉर्मल वेट एग्रीगेट। प्रिजमली दिस इज बिकॉज ऑफ लोअर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लोअर मॉडुलस है ये, सो लोअर मॉडुलस है तो इसका स्ट्रेंथ का क्रीप ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्सिंग प्रोपोर्शन। मिक्सिंग प्रोपोर्शन में देखिए, द अमाउंट ऑफ पेस्ट कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्रीप। कितना पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट कंटेंट और उसका क्वालिटी। ए पुअर पेस्ट स्ट्रक्चर अंडरगोज हायर क्रीप। देखिए, अगर आपने अच्छा मिक्स नहीं किया तो क्रीप 100% आ जाएगा, तो क्रीप हो जाएगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते क्रीप को। सो क्रीप इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए, आप वाटर सीमेंट रेशियो को भी ज्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम 0.4 से 0.6 लेते हैं। अगर वाटर कंटेंट आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर वर्क को इंक्रीज किया तो क्रीप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड ए साइन इफ द क्रीप इज इंक्रीजेस। क्रीप इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो क्रीप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। देखिए, क्रीप इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट है। ठीक है, तो बट डायरेक्टली स्ट्रेंथ तो आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वाटर सीमेंट रेशियो है, जल स्पेस रेशियो है, ये सब के लिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डायरेक्टली रिलेटेड है। बट इनडायरेक्टली ये क्या है, क्रीप भी इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, सो इन्फ्लुएंस ऑफ एज मीन्स एट age at which a concrete member is loaded will have a predominant effect on the magnitude. कितना एज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीम का कास्ट किया, ठीक है, उसका लोड टेकिंग कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन बोल के समझ लीजिए, बट वो 100 किलो न्यूटन आफ्टर 28 डेज है, बट आपने उसको 14 डेज के बिफोर ही अप्लाई किया तो वो 100% वहां पे क्रीप आ जाएगा, बिकॉज वो सस्टेनेबिलिटी अभी नहीं है लोड लेने के लिए, तो तब क्रीप आने का चांसेस ज्यादा रहता है। उसको ही हम इन्फ्लुएंस ऑफ एज बोलते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ क्रीप। इफेक्ट ऑफ क्रीप, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रीप इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, द मेन फैक्टर बीइंग टाइम, लेवल ऑफ स्ट्रेस। टाइम कितना है और लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है, कितना लोड हम अप्लाई कर रहे हैं। इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम्स क्रीप इंक्रीजेस द डिफ्लेक्शन। क्रीप क्या करता है, डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करता है विथ टाइम एंड मे बी क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन। तो ये क्रिटिकल हो जाएगा जब हम कंसिडर करते हैं डिजाइन के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रीप हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो कल के वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट नया टॉपिक करेंगे जो भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर आएंगे, और टेस्टर्स क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे करना है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को कैसे करना है, क्या क्या क्यूब्स रखते हैं, कैसे टेस्टिंग करने हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे आराम से। तो पढ़ते रहिए, पढ़ना मत छोड़िए, नोट्स बनाते रहिए, बट एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, पढ़ते रहिए। मैं आपको वीकली 3 वीडियोस या 4 वीडियोस ट्राई कर रहा हूँ, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी के जो भी है आप जीके भी पढ़ते रहिए, जस्ट पढ़ते रहिए। और स्टडी प्लान आपको होना तो हमारे वीडियोज में जाके देख लीजिए, या आई बटन पे क्लिक करके इसके ऊपर वहाँ पे स्टडी प्लान भी है, आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये सबको हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वन एंड ऑल। सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल विद सुधीर। थैंक्स वन एंड ऑल।